المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل علی محمد وعلى محمد. کچھ اعلان ہیں جیسے کہ امام برگاہ میں بھی اعلان ہوا ہے تو دوبارہ سے اعلان کر دیا جائے کہ 10 صفر کو جو ہے امام برگاہ میں دن 2 بجے مجلس اعزاء ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. اس کے بعد جو ہے جو مخصوص اعلان جو مجھے یاد ہے وہ 14 کو بھی 2 بجے ہے مجلس اعزاء. 11 صفر کو کرن کے گھر میں دن 2 بجے مجلس اعزاء ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. 15 صفر کو جو 12 کی مجلس تھی وہ 15 کو چلی گئی ہے چہلم کی وجہ سے. تو 2 بجے مجلس اعزاء کا جو ہے وہ 1 بجے مجلس شروع ہوگی اور آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. مجھے یاد آ گیا 1 بجے کے دن. اس کے بعد جو ہے پھر 16 کو اسی امام برگاہ میں جنی امام برگاہ میں تابوت ہے امام رضا علیہ السلام کا دن 2 بجے مجلس اعزاء ہے. 17 کو بھی دن 2 بجے مجلس اعزاء ہے. اس کے بعد جو ہے جو مجالس ہوں گی وہ آپ لوگ کو بتا دی جائے گا. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی ہفتے والے دن جو ہے توجہ چاہتی ہوں اسی ہفتے والے دن جو ہے پھٹک بلڈنگ میں دن 2 بجے مجلس اعزاء ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. یہاں کا سلسلہ تابوت ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. 11 اگست 5 صفر پہلے 6 صفر کو تھی نا اب 11 اگست کو 5 صفر ان کے گھر میں 5 صفر کو بھی جو ہے وہ صدف علی منگش کے گھر میں دن 10 بجے صبح 10 بجے مجلس اعزاء ہے. آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے. جو سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے. بس دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ بانیان سے رابطہ کر لیا کریں کہ جو سالانہ مجلس ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں اپنی تمام بہنوں کی توجہ چاہتی ہوں اپنی تمام بہنوں اور ماؤں سے کہ جنہوں نے بر وقت تشریف لا کر جو ہے وہ ہمارا میرے ساتھ تعاون کیا. خدا آپ سب کی جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ کرے, معرفت میں اضافہ کرے. خدا سب کو صحت و عافیت عطا کرے. اسی کے ساتھ دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر. دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر. میں خود کو سمجھتی ہوں سکندر کے برابر. میں خود کو سمجھتی ہوں سکندر کے برابر. سر نقش کف پائے ابو ذر پہ ہے جب سے. سر نقش کف پائے ابو ذر پہ ہے جب سے دنیا ہے میرے پاؤں کی ٹھوکر کے برابر. محمد والے محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جو اشتہار امام برگاہ میں لگا ہوا ہوتا ہے تھوڑی سی زحمت کر کے اس کو پڑھ لیا کیجئے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے لگایا ہوتا ہے. وہاں پہ سالانہ مجلسیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہے مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے. توجہ چاہتی ہوں زبانیں کھولیے. مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر. اس کی آواز تھوڑی تیز کر دے. ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر. صد شکر میری تشنا لبی یاد ہے جس کو. صد شکر میری تشنا لبی یاد ہے جس کو بیٹھا ہے وہی ساقی کوثر کے برابر. نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے. نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے. کینکر کو نہ لاؤ رخ گوہر کے برابر. کینکر کو نہ لاؤ رخ گوہر کے برابر. شبیر کے ہاتھوں پہ تو اصغر تھا وہ لیکن. شبیر کے ہاتھوں پہ تو اصغر تھا وہ لیکن نکلا سر میدان علی اکبر کے برابر. محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں. محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں. کون آئے گا مولا تیرے نوکر کے برابر. مولا علی مشکل کشا کی ذات پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
तमाम तर हमदो सना है ज़ात परवरदिगार के लिए, जलाए के हमदो सना दरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, जलाए के दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपके सामने 3 दिन से मुसलसल जो है वो एक मौजू चल रहा है, बस उसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगी। वो है हुज्जत खुदा, यानी अल्लाह जिसे हुज्जत खुदा बनाता है उसे कुछ इख्तियारात देता है, यानी वो जो उसको हुज्जत अपनी हुज्जत बनाकर भेज रहा है। जैसा आप किसी को कहें कि आप मेरी नायब बन जाइए, या आसान मिसाल दूँ, पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है वो अपना कोई नायब बना ले, मिसाल दे रही हूँ, लेकिन उससे सारे इख्तियार छीन ले, वाह वाह बिस्मिल्लाह, पहुंच जाइए, इख्तियार से छीन ले। नायब तो बना रहा है, अब होना क्या चाहिए, इख्तियार भी देने चाहिए। यही तो बात कर रही हूँ, अल्लाह ने हुज्जत बनाई है और इख्तियारात भी दिए हैं। कहा मेरी पूरी कायनात पे तुम तसर्रुफ कर सकते हो, मेरी पूरी कायनात पे इख्तियार है, जो चाहो कर सकते हो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। वो है हुज्जत खुदा, यानी जिसे हक तसर्रुफ करना ही ना आता हो वो हुज्जत नहीं होता। जिसे इस्तेमाल करना ना आ रहा हो, जिसे मालूम ही ना हो हो क्या रहा है, वो हुज्जत नहीं होता। हुज्जत वो है जो जमीन पर बैठ के लोहे महफूज का मुताला करे। हुज्जत वो होता है जो अल्लाह की मर्जियां खरीद ले। हुज्जत वो होता है जो कायनात पे तसर्रुफ रखता हो, वो है हुज्जत खुदा। समझिए, मैं कभी आपको लेके जाना चाहूंगी इंशाअल्लाह। हुज्जत कौन होता है, जो तसर्रुफ रखता है आपकी और मेरी जिंदगियों पर, यानी उतना हक हमें नहीं है अपनी जिंदगी पर जितना हुज्जत खुदा को है। आपके और मेरी पूरे वजूद पे, मेरी जिंदगियों पे हुज्जत खुदा तसर्रुफ रखने का हक रखते हैं, और सबसे ज्यादा बढ़कर हक उन्हीं को है। हुज्जत कौन होता है, जो जिसे इख्तियार दिया गया हो, वो है हुज्जत। मैं यहाँ 2 वाक़या पढ़ूंगी हुज्जत खुदा के, कि देखिए मौला के पास एक यहूदी आया, इमाम रज़ा से ये मरवी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमाम रज़ा से रिवायत है कि बिहारुल अनवार में जो है वो मौला फरमाते हैं कि एक नौखेज़ यहूदी जो है वो आया, खलीफा अव्वल का दौर था, उसने आकर सलाम दुआ ली और उसके बाद कहा कि मेरा बाप मर गया है, तो मुझे बताकर नहीं गया कि मेरा जो वो उन्होंने बचाया था माल वो कहाँ है, जो विरासत छोड़ी है वो किधर है। वो जो खलीफा अव्वल थे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जानता। मेरे इशारे समझ आइएगा, क्योंकि हर बात रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो आप जहन में रखिए और बस बोलते आइए जिस उसको हक़ मारिफत है। बस उसने कहा कि हमें जो है वो नहीं मालूम कि तुम्हारा माल कहाँ है। वो बेचारा आया और दूसरे खलीफा के पास, और आके उसे कहा, तो वो जो दूसरे खलीफा थे उन्होंने थोड़ा सा उसे डांट डपट की और उसके बाद कहा कि इल्म गैब कौन जानता है। आखिरी मेरी बहन तक, जहाँ तक बात पहुँच जाए, अपनी समातों को बुलंद कीजिएगा। खानदान ज़हरा की अज़मत पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इल्म गैब कौन जानता है, कैसी बातें कर रहे हो, कौन जानता है इल्म गैब? तुम्हारा बाप मर गया, अब हमें क्या मालूम है माल कहाँ है कहाँ नहीं। अब वो आया है तो अमीर कायनात बैठे हुए थे, आपके और मेरे इमाम बैठे हुए थे, उसने आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अमीर। उस बेचारे को फिर मारशार पड़ी और लोगों ने उसे मारा पीटा, और उसके बाद कहा तुमने ना पहले खलीफा को कहा ना दूसरे खलीफा को कहा, वो भी तो खलीफा है, उन्हें क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन कहा। अब यहूदी है, बात को समझिएगा, फिर ज़बानों को मुअत्तर कीजिएगा कि उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने हयात रसूल में लोगों से ये सुना कि रसूल ने अपनी जगह पर अली को बिठा दिया। अपनी जगह पर रसूल ने अपनी जगह पर अली को मुंतखब कर दिया। अब रसूल की जिंदगी में अली अमीरुल मोमिनीन, मैंने लोगों के मुँह से सुना, मैं तो यहूदी हूँ, मुझे नहीं मालूम।
उसने आके मौला को सलाम किया और उसके बाद मौला ने कहा अच्छा ये बातें बता छोड़ और ये बता कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। उसने कहा या अमीर मोमिनीन या अली, मेरा बाप फौत हो गया और उसने माल जो छोड़ा है उसे मुझे बताया नहीं, या तो मेरे बाप के से पूछकर मुझे बता दीजिए। अल्लाह जाने कहाँ मौजूद मजलिस में हाजिर हो जाइए। उसने कहा या तो अब जो है मेरे बाबा से पूछकर बता दीजिए, तो या आप खुद निशानदही कर दीजिए कि माल किधर है। मौला ने कहा एक सफेद चमड़ा लेकर आओ। मौला ने सफेद चमड़ा मंगवाया, लिखने का सामान मंगवाया। मौला ने कुछ लिखा, कुछ इबारत लिखी, कहा कि ये ले जाओ और खुद लिख सकते हो। उसने कहा लिख सकता हूँ। कहा ऐसा ही लिखने का सामान और ले लो और लिख लेना इसको और जाओ ले जाओ इसको वादिये बरहूत में। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। वादिये बरहूत में, अगर पहले सुना हो वादिये बरहूत क्या है याद है? वादिये बरहूत अभी बताऊंगी वादिये बरहूत कौन है। कहा चले जाना गरूबे आफ्ताब के वक्त वादिये बरहूत में चले जाना, वहां जाके दरमियान में ये मेरा रुक्का रख देना और फिर एक आवाज देना। कहा मुझे अमीर अल मोमिनीन वसीयत रसूल ने भेजा है, मैं अली का कासिद हूँ। उसके बाद काले कब्बे आएंगे, जब वो आ जाए तो अपने बाबा को मुखातिब करना। अब उसने ऐसा ही किया, आ गया, रुक्का रखा, काले कव्वे आए, उसने जो है वो जब आ गए तो अपने बाबा को मुखातिब किया। उसके बाप की आवाज आई, बेटा तू इधर किधर आ गया? बेटा तू इधर किधर आ गया? ये तो जहन्नमियों की वादी है, वादिये बरहूत जहन्नमियों की वादी है, तू इधर किधर आ गया है? उसने कहा कि आप फौत हो गए और मुझे बताकर भी नहीं गए कि माल किधर है। तो उसके बाप ने उसके सारा माल के बारे में बताया। उसने जल्दी जल्दी लिख लिया और लिख कर आया उस जगह पे। जब जो जाने लगा था तो मौला ने कहा जाओ और अपने बाप से पूछ के आना और खैबर से अपना माल उठाते आना। जब पहुंच गई है, खुदा की मार्फत में इजाज़त करे, मौला ने कहा खैबर से अपना माल उठाते आना। वो आया, खैबर से अपना माल उठाया। उसने जब आया था अमीरुल मोमिनीन से कहा था मैंने मन्नत ये मानी है अगर मेरे बाप के माल के बारे में पता चल जाए उस माल को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। मौला ने उसे रुका दिया, वो आया, आके माल निकाला, आ गया अली के कदमों में और आके कहा ये माल भी ले लीजिए और मुझे इस्लाम में दाखिल कर ले। ये होता है हुज्जत खुदा। मुश्किल कुशा की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। ये होता है हुज्जत खुदा। क्या आपने रसूल के मुंह से नहीं सुना? अली तू जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। यही से वादिये बरहूत का सोचिए, अली जिसे कह दे कि ये जहन्नमी है वो जहन्नमी हो जाता है। अब अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले भेजने वाले हैं। एक वाकया, मौला घर में आए और आके मौला से ने बीबी से कहा कि कुछ खाने के लिए है। बीबी ने कहा 3 दिन हो गए घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और मौला ने कहा फिर फातिमा लाइए कुछ कोई चीज़ दीजिए ताकि मैं उसे जो है वो गिरवी रख कर जो है वो कुछ खाने का सामान ले आऊँ। जनाब सैयदा ने एक चादर पेश की और मौला वो चादर लेकर चले। यहूदी के पास आए, यहूदी पड़ोसी था मौला का, तवज्जो चाहती हूँ। और मौला आए यहूदी के पास और यहूदी से आकर कहा, समझिएगा हुज्जत खुदा कौन होता है। यहूदी के पास आए और आगे कहा कि ये चादर गहन रख लो और मुझे कुछ जौ दे दो। उसने चादर ले ली, चादर रखी, कुछ जौ दे दिए। जब जौ दे दिए और साथ में तंजन कहा, हमने तो सुना है कि आपके रसूल जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। या अली अपने रसूल से कहिए कि आपके खाने पीने का इंतजाम भी कर दें। बात को समझिएगा, हुज्जत खुदा कौन होता है। इतना कहा तो मौला ने कहा तू क्या समझता है हमारे आका की अजमत और अहमियत को? वाकई मेरे आका की अजमत बहुत बुलंद है, तू तो उनकी बात कर रहा है। अगर मैं हुक्म दूं, हम तो दुनिया इसलिए पसंद नहीं करते कि हमारा खुदा दुनिया को पसंद नहीं करता, वरना दुनिया तो हमारे पाँव की ठोकर है। में मौला ने दीवार की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा अगर मैं हुक्म दूं, मेरे आका तो आका है। खुदा कौन होता है? मौला ने कहा मेरे आका तो आका है। रसूल की बात कर रहे हैं, मेरे मौला तो मौला है, मेरे आका तो आका है। अगर मैं हुक्म दूं
कि यहूदी देख रहा था। यहूदी ने देखा और देख के फौरन अली की तरफ देखा। अली ने दीवार की तरफ देख के अभी कहा मैंने हुक्म नहीं दिया, सुभान अल्लाह, तू सोने की हो गई है, अभी मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया है कि तू हो गई। दीवार को अल्लाह ने जबान दी, दीवार ने अमीर अल मोमिनीन से कहा या अली, दीवार ने मौला कायनात से कहा या अली आप उलुल अम्र हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप जानशीन रसूल हैं, आप वसीय रसूल हैं, हमने तो आपकी बात का हुक्म मानना है, बस आपने कह दिया तो हो गया। मुश्किल कुशा की अजमत पर बुलंदतर सलावत। मैं यहाँ कह रही हूँ फातिमा बिनते असद आई काबे के करीब, मरियम असर के बीबी पे गुमा होते हैं। मेरी बात का जवाब है इसमें। चाप कदमों की सुनी और बनाया रास्ता, चाप कदमों की सुनी और बनाया रास्ता, सच्ची कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ये है वो हुज्जत खुदा जिनको अल्लाह ने हुज्जत बना कर। हर बंदा हुज्जत खुदा नहीं होता, जो कायनात में इख्तियार रखे वो हुज्जत खुदा है, जो आपकी जिंदगी में तसर्रुफ रखे वो हुज्जत खुदा होता है। हर बंदा हुज्जत खुदा नहीं है, और आज भी एक हुज्जत खुदा है। आइए फुर्सा देते हैं उस हुज्जत खुदा को। दाखिले हरम शाम में वरूद है बीबी का। 29 मुहर्रम से लेकर 2 सफर तक शहजादी ने खड़े होकर 15 आज़ानें सुनी। अल्लाह जाने आपने क्या सुना। 29 सफर से लेकर, फिर से कह रहे हैं, आंखों को वसूल करवाइए, 29 मुहर्रम से लेकर 2 सफर तक आकाज़ादी ने 15 आज़ाने खड़े होकर सुनी। बीबी जब शाम के बाहर पहुंची तो ऐलान हुआ अभी हरम रसूल शाम में दाखिल ना हो। वजह ये बताई गई कि अभी शाम सजाई जा रही है। जो वो बाजार देख कर आए हैं खुदा की ज़ियारत कबूल करें, मेरी तायीद कीजिएगा, और जो नहीं गए खुदा हम सबको ले चले। कहते बाबे साआत पे बीबी जो है वो खड़ी रही, शाम के बाजार सजाए जाते रहे, शाम की गलियां सजाई जाती रही, लोगों ने रंगारंग कपड़े पहने, रंग बिरंगे कपड़े पहने, औरतें गर्म पानी पत्थर लेकर छतों पर चढ़ गई, नारे लगाए जाते थे कि बागी की बहन आ गई। नारे लगाए जाते थे बागी की बहन आ गई है। जिसने अली से बदला लेना है जंगों का, ओहद का बदला लेना है, बदर का बदला लेना है, हुनैन का बदला लेना है, नहरवान का बदला लेना है, खंदक का बदला लेना है, जिसने जिस जंग का बदला लेना है आए वो आज अली की बेटी से बदला ले ले। सजाई गई शाम, इतना रश था, इतना रश था। जब मौला अंदर दाखिल होने लगे तो आकर जो साथ चलने वाले थे उनसे कहा देखो बाजार ऐसे कचाकच लाइनों से भरा हुआ है, शामियों से भरा हुआ है, शराबियों से भरा हुआ है। जगह ऐसी थी, आराम से पढ़ लेना, आप आराम से पुरसा ले लेना, सबका हक है पुरसा देना, सबका हक है। जिसको रोना नहीं आता ना, ये मैं इधर रवायत पढ़ दूं, जिसको रोना नहीं आता ना वो रोने वाली शक्ल बना दिया करें। आप जानती हैं मसाइब बहुत मुश्किल है। रिवायत में है अगर कोई रोता है तो उस पर जन्नत वाजिब है। अगर किसी को रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना ले तो भी उस पर जन्नत वाजिब है। अगर आंख से एक कतरा मच्छर के पर के बराबर भी आंसू गिर जाता है तो उस पे भी बीवी ने जन्नत रखी है, उसे भी जन्नत अता की जाएगी। आप और मुझे नहीं मालूम, सैयद सज्जाद अपने
में दाखिल हुए। मौला ने मुखातिब करके कहा, देखो शराबियों से मजमा भरा हुआ है, तमाशाइयों से मजमा भरा हुआ है, ऐ लईनो ऐसा करो, इन लोगों से कह दो थोड़ा आगे चले जाएं ताकि यहाँ से मेरी पुपियाँ गुजर जाएं। ये नाजों की पलियाँ हैं जो घरों में भी चलती रही है। आप जानती, मैं यहाँ एक रिवायत पढ़ूं, आप जानती हैं जब 40 हिजरी में मेरे आका ने कहा था ज़ैनब मुझे चल कर देखा, चंद कदम मेरी बीवी चली थी और गिर गई थी और बाबा से कहा था बाबा मेरे 18 भाई हैं, बाबा मेरे 18 भाई, खुदा के भाइयों को सलामती दे, बाबा मुझे कौन चलाएगा। आ गया वो वक्त जब अब्बास घोड़े से गिरा तो शहजादी ने कहा मुझे यकीन हो गया कि मैं शाम के बाजारों में फिर आई जाऊंगी। अभी शाम, अभी को शाम में दाखिल किया गया। लोगों ने, मौला फरमाते इमाम सज्जाद मक्तल का जुमला है, सुन के रो लीजिएगा। मौला फरमाते हैं कि जब हम शाम में दाखिल हुए तो जब शाम का बाजार अबूर हुआ तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। लोगों ने छतों से गर्म पानी बरसाया, पत्थर फेंके, हम लहूलुहान हो गए, हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। लिया गया अली की बेटियों से, बीवी खड़ी रही है। एक रिवायत और पढ़ूं, आपकी मार्फत के जो हदिया करूं अपनी मार्फतों को। एक रिवायत है जब बीवी उस बाजार में पहुंची जिससे आगे दरबारे यजीद है, बीवी चलती थी गिर जाती थी, कहते 3 दिन लगे, 72 घंटे बीवी को लगे थे। वो वहां से लेकर दरबारे हमीदा की आखिर से लेकर यजीद के दरबार तक जाने में जो कैदी कराए खुदा उनकी आंखों को सलामत रखे। जो नहीं कि मुझे बताना इतने से फासले में कौन है जो बार बार गिरता हो, कौन है जो बार बार उठता। मेरा सलाम अली की बेटी आलिया पर, मेरा सलाम उम्मुल मसाइब पर, मेरा सलाम शरीकतुल हुसैन पर। बीबी चलती थी गिर जाती थी, चलती थी गिर जाती थी, अल्लाह जाने कैसे दरबारे यजीद तक पहुंची। शर्म हया वाली बीबी शराबियों का मजमा जुमला काफी है। क्या शरीफों की बेटियां होती है ना, वो शराबियों के दरबार में नहीं जाती, जो शरीफों की बेटियां होती है वो बाजारों में फिराई नहीं जाती। इससे बड़ा मसाइब क्या पढ़ो, अली जैसे शरीफ की बेटी, हसन जैसे हलीम की बहन, हुसैन जैसे शरीफ की बहन, सैयद सज्जाद जैसे गयूर की फुफी शाम के बाजार में दाखिल हुई। बीबी ने देखा हुसैन आगा की आंखों ने बंद होना शुरू किया। बीबी ने मौके नेज़ा की तरफ देखा, हुसैन जब तू कातिल हो रहा था ना, मातम करके रोकिए, हमारे मज़हब में मातम जायज़ है ना, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको कोई ताज़ियाते नहीं मार रहा, आपके लिए अजर सवाब रखा है, एक आंसू में अजर सवाब है। अली की बेटी जब रोती थी तो कोड़े बरसाए जाते थे, ताज़ियाने मारे जाते थे, और ताज़ियाने भी वो लोहे के ताज़ियाने थे। अली की बेटी जब तक जिंदा रही सीधा लेट नहीं सकती थी ना, आपके कोई पाबंदी नहीं है आपके रोने पे। अली की बेटी को भाइयों के लाशों में रोने ना दिया गया है। बस आखिरी जुमला सुनिए, अली की बेटी हसरत लिए शाम में बैठी रही, कोई मुझे कहे भाई की मैयत पे रोना, कहे भाई को रोना, किसी ने रोने ना दिया गया। ऐसे बीवी अपने भाई के लाशें के पर से गुजरी जैसे इसका कोई ताल्लुक ही ना हो हुसैन से। ऐसे बीवी भाई के लाशें के पास से गुजर गई है। बस आखिरी जुमला से बात कर लीजिए। बीबी जब पहुंची है वहाँ शाम के बाजार में, शरीफों की बेटियां है ना, रो लीजिएगा, दिल खोल कर रो लीजिए। अल्लाह जाने दोबारा जिंदगी मिले या ना मिले, मस्जिद में मजलिस में आना नसीब हो या ना हो, लेकिन ये रोना इतना कीमती है। अली की बेटी जब शाम के बाजार में पहुंची और वहाँ पे बीबी ने जब पहुंची है जो है वो
दरबार यजीद में एक बात सुनिए, अली की बेटी ने एक खुतबा दिया और देखा हुसैन आका का सर जो है उसने आंखें बंद करना शुरू किया। शहजादी ने कहा देख हुसैन, जब तू ज़िबा हो रहा था तो मैं तुझे ज़िबा होता देख रही थी। मैंने बड़े हौसले से पढ़ा है, मैंने ठहर के पढ़ा है ताकि आप भी हौसले से सुन लें। कहा हुसैन देख, जब तू ज़िबा हो रहा था मैं देख रही थी। हुसैन मैंने आंखें बंद नहीं की थी। हुसैन वो तेरा मक्तल गा था। आखिरी जुमला सुना, हुसैन वो तेरा मक्तल गा था। हुसैन ये बहन का मक्तल गा है। हुसैन अब आंखें बंद न करना, मैं दरबारे यजीद में जाऊंगी। हुसैन तू आंखें खोल के बहन का कत्ल होता देखना। हाय ज़ैनब मर गई जब शाम के बाजार में गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन